Hi friends, my name is Shahro Sheikh and you are very much aware of my name as well. So मैं basically आज क्योंकि एक अच्छा दिन था, that's why I just wanted to interact with you guys. आज हमारे लिए एक special day है, which everybody knows. I mean every Indian knows the value of this day, which is 15th of August. We usually say like Independence Day is, I mean, celebrated here in India. We usually believe that we have got independence uh, only in the month of 15th of August 1947. But there are people who are thinking now they have got the independence there in 2014. So I am not talking about those. Okay, so I just wanted you to ask, what do you believe? I mean, do you uh, think that you have got the independence there in 1947, or I mean just 12 years ago? कहना ये था आपसे कि मैं वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं एक्चुअली। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, वर्किंग इन ICICI Prudential as a financial service manager. So since 6 years I've been working there, and I have I mean learn a lot there, and I have been managing I mean more more than crore rupees of funds of the customers. I mean I have been arranging or managing. So since why actually I was thinking about giving education about stocks and as well as share market and basically investment ideas. I mean people usually invest money everywhere, like they put their money into saving accounts, they use FDs, they use like RDs. So I mean even though non-banking products like they usually go to invest in golds as well as silver, cryptocurrencies. So what I believe, I mean there are so many instrument, I mean so many products in which you can invest. I mean investment is something that you invest either your time or money. So investing in time is an example of like you take a study, you complete your study. This is an investment of your time actually, whatever you the time you give, जो आप टाइम देते हैं उसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट जो पैसे आप जमा करते हैं, और दूसरा टाइम की इन्वेस्टमेंट जो आप टाइम देते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, तो उनसे अगर रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न, सो व्हाट इज़ द आइडिया, व्हाट इज़ द आई मीन थिंकिंग टू जस्ट गिव और डू दोज इन्वेस्टमेंट? So I would suggest you where to invest so that you can become financially free in almost 20 to 25 years. If you invest somewhere, I mean in a stock portfolio or mutual fund or somewhere in FDs and banks on a regular basis, you will definitely become financially free after 60s. I mean, whenever you retire, you get retired, you will feel like you don't need that much of money, you have enough. And this is why मैं सोच रहा था कि मतलब इस तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। तो मैं जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना नॉलेज दे दूँ कि आप लोग भी खुद से इन्वेस्टमेंट को समझ पाएँ और खुद से अपने पैसे को सही जगह लगाकर ग्रोथ कर पाएँ। क्योंकि जो आप कमाते हैं वो तो ऑलमोस्ट सभी लोग कमाते हैं, सबकी भले ही सैलरी और इनकम थोड़ी कम और ज़्यादा होती है, बट everyone is earning. Those who have two hands and two feet, I mean they are earning. So the matter is what the idea of investment is. तो मेन क्या है ना कि जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे को अगर सही जगह पे कहीं लगाने से जहाँ से कि आपको कुछ रिटर्न मिल पाए, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। व्हेन यू आर हैविंग एन इन्वेस्टमेंट, यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, आई मीन, and you are not getting the proper benefit of those investment, then what is the idea of getting invested? सो आप लोगों को वहाँ पैसे लगाने चाहिए जहाँ से कि आपके पैसे भी ग्रो करें, यानी आपकी कमाई और सैलरी तो ग्रो कर ही रही है एवरी ईयर, बट आपके पैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं। सम लाइक एग्जांपल देखिए, जस्ट जस्ट थिंक एन एग्जांपल ऑफ दिस। आई मीन इन्फ्लेशन यूजुअली इज, यू हैव हर्ड द नेम
आपने नाम सुना होगा इन्फ्लेशन, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। तो महंगाई जो होती है वो एवरी ईयर 5 to 8% इन बिटवीन, किसी प्रोडक्ट की 5% रहती है, किसी के 6, किसी के 7, तो आप ऑलमोस्ट समझिए 5 to 8% आपकी इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 8% भी आप मान के चल सकते हैं। तो 8% एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट है। और आपके पैसे जो है, जो आपने 1 लाख रुपीज़ मान लीजिए सेविंग किया है आपने, कि मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए सेविंग करता हूँ, दैट्स इट। सो मैं बच्चे की अपनी पढ़ाई कराऊंगा इससे 1 लाख रुपए से। तो होगा क्या है ना कि 1 साल बाद अगर वो पैसा आप अपने कहीं पे भी ड्रॉवर या अलमीरा में रख देते हैं, तो वो 1 साल बाद 1 लाख रुपए की जगह पे, जितने की अभी बजट आ रही थी आपकी एक्सपेंस को, एजुकेशन कॉस्ट तो एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं 8% से ज़्यादा जाना पड़ेगा उसके लिए, तो वहाँ पे आपको 10% जाना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए जब आप बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए रख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस साल 1 लाख रुपये उसकी फ़ी लग रही है। और मान लीजिए कि ये एक एग्जांपल है एक्चुअली, 1 लाख रुपया 1 मंथ का फ़ी होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऑलमोस्ट 1 ईयर की। तो 12 महीने में आपने 12 लाख रुपया भी पे कर दिया है समटाइम्स। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस द एजुकेशन और द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग। तो होता क्या है कि आप गए वहाँ पे एडमिशन कराने और खर्च, तो मतलब 1 लाख रुपये आपने रखा और उसकी इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन हो गई आपके 1 लाख रुपये को, आप जब वहाँ लेके गए तो वहाँ उसकी वैल्यू, अब उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़कर वहाँ पे 1,10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं आपसे, कि नाउ यू हैव टू पे 1,10,000 रुपीज़ फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो इन दैट केस आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको 10,000 रुपये पॉकेट से देने पड़े, यानी इन्फ्लेशन ने आपके पैसे को खा लिया, आपकी वैल्यू को कम कर दिया। अगर वो पैसे आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं एफडीज़ में, या बैंक एफडीज़ में रख दिया आपने कहीं पे, तो बैंक की एफडी जो होती है वो आपको इंटरेस्ट देती है 6 to 7%। ओके, सो वो जो इंटरेस्ट होता है वो आपको महंगाई को बीट करने के लिए नहीं है, वो एक्चुअली इतना है कि आपको महंगाई से थोड़ा-सी लड़ने में मदद करेगा, ठीक है। लेकिन रही बात कि फिर भी आपको अगर वहाँ पे 5 से 6% एफडी में रिटर्न मिल गया, आपको 1 लाख का वैल्यू आपका 1,06,000 हो गया, वहाँ तो आपसे स्कूल्स में तो आपसे 1,10,000 मांगे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप 4,000 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन अभी भी देख रहे हैं, 4,000 आपकी वैल्यू घट गई है आपके फंड की, आपके पैसे की। तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पे कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले। इन्फ्लेशन यानी महंगाई से ज़्यादा बेनिफिट हो, यानी अगले साल जितनी महंगाई बढ़े उससे ज़्यादा आपके पैसे बढ़े, ठीक है। तो बेसिकली वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना और समझना, वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो मैं वो जानकारी देने के लिए ही वीडियो बनाऊँगा बेसिकली, ठीक है। तो आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारा वीडियो कंटिन्यूअसली वॉच करें। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उन्होंने कहा है कि एक्चुअली आप वीडियोस हिंदी में बनाएं। सो हिंदी इज़ अ रीजनल लैंग्वेज बेसिकली। आई मीन मेनी ऑफ द प्लेसेस हेयर इन इंडिया पीपल डोंट स्पीक हिंदी। सो मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना नहीं चाह रहा था। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है उनकी, और वो चाहते हैं कि मैं हिंदी में ही उन लोगों को एजुकेशन दूँ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो मैं बेसिकली हिंदी में ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इन बिटवीन सम इंग्लिश वुड बी देयर, बट क्योंकि मुझे ऑल ओवर इंडिया और इवन दी आई मीन वीडियो मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग देखें, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंग्लिश का यूज़ करना होगा, और आगे जाकर मैं इंग्लिश में शिफ्ट होने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से अपने आप को ट्रेन करें, और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पूरी तरह से अपने आप को तैयार करें। ओके, बाय फॉर नाउ।